برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی مقیم پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے سوموار کو عید الاضحیٰ منائی۔ مختلف مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ خطبات کے دوران مظلوم کشمیریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں مقیم پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی نے سوموار کے روز عید الاضحیٰ منائی۔ اس سلسلے میں تقریباً 160 مساجد میں عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ کشمیری عوام اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گھمگول مسجد، حسینیہ مسجد، قادریہ مسجد، باہو سلطان مسجد اور دیگر مساجد میں عید کی خوشیوں کو مظلوم کشمیریوں کے نام کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا گیا۔ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، فریضہ ہے یہ کہ ہم یاد رکھیں ان لوگوں کو، ان مؤمنین کو۔ نماز عید کے بعد کمیونٹی رہنما ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکبادیں پیش کیں، جس کے بعد انہوں نے قربانی کی ادائیگی کے لیے سلاٹر ہاؤسز کا رخ کیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح والسل میں عید الاضحیٰ انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی۔ مختلف مساجد میں عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ کشمیر و فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔ دیکھیے عرفان احمد فراز کی رپورٹ۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، والسل میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع جامعہ غوثیہ قاسمیہ مسجد مونٹ اسٹریٹ میں ہوا۔ عائشہ مسجد، ابوبکر سینٹرل مسجد، مسجد منہاج القرآن، مسجد ابوبکر میں ہزاروں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی، پاکستان کی سلامتی اور امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے کو گلے ملے اور مبارکبادیں دیں۔ اس موقع پر علامہ ریاض احمد، حاجی مشتاق احمد، راسب کشمیری، راجہ فضل الرحمان نے 92 نیوز سے گفتگو میں کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کشمیر کے ان مظلوم بہن بھائیوں پہ جو انڈین غاصب کا جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی آزادی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہم ان کا بھرپور ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہم 15 اگست کو بھی یہاں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لنڈن میں مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں اور وہاں پر ہندوستان کے خلاف اپنی ناپسندگی سے اظہار کریں۔ تمام مسلمان، تمام عالم اسلام میں سراپا احتجاج ہیں اور بالخصوص آج کے عید کے اجتماع میں یہ دعا کی گئی کہ رب کائنات مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائے، ہمت طاقت اور قوت عطا فرمائے اور رب کائنات پورے عالم اسلام میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، برما میں، افغانستان میں، بالخصوص کشمیر میں، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، رب کائنات سب کی مدد اور نصرت فرمائے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور وہ دن دور نہیں جب وادی میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ لیوٹن میں مقیم پاکستانیوں نے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عید الاضحیٰ نہایت سادگی سے منائی۔ مزید احوال صفدر بخاری کی رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح لوٹن میں مقیم پاکستانیوں نے بھی کشمیری بہن بھائیوں سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عید الاضحیٰ سادگی سے منائی۔ مرکزی جامعہ مسجد لوٹن میں عید الاضحیٰ کا بڑا اجتماع ہوا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں میں ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بھارتی جارحیت کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ کشمیری عوام کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں بسنے والے مسلمان دکھ کی گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ To wish everyone Eid Mubarak and especially what's happening around in Kashmir, we should all get together and make dua for these. میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو یو کے میں عید مبارک، اور اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے عید بہت سادگی سے بنائی ہے کیونکہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک، لیکن اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری عید جو ہے وہ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر رہے کیونکہ کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک آزادی عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات دور کرے۔ Wish you all Eid Mubarak. Eid Mubarak to all the viewers of 92 TV channel, especially to my parents and my brothers and sisters in Bolton. One message I would like to share on this beautiful occasion of Eid al-Adha is for the Muslim Ummah to be united.
especially on the issue of Kashmir and Palestine as well. Especially what's happening in Kashmir with the genocide, with the war, with the battle, mothers, sisters, brothers, dads, people who ain't got mothers and fathers to celebrate Eid. The people are very unfortunate. However, very lucky people. Keep them in your du'as and inshallah they'll have a peace in one go. मेरी तरफ से तमाम मेरी खाना को, मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान और आले इस्लाम को ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। और इस दफ़ा हम पहले तरीके की निस्बत ईद नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर में मज़लूम कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है। आज जनाब हम इधर जमा हुए हैं सेंट्रल मस्जिद में, ईद उल अज़हा मना रहे हैं बड़ी सादगी के साथ। आपको बाखूबी इल्म है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, खुदा कसम मेरा खुदा जानता है, मेरा दिल लहू के आंसू रोता है। बहुत जुल्म, बहुत सितम हो रहा है, और मैं पूरी दुनिया मुसलमान उम्मा पर अपील करता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते अब वेकअप कॉल है, आप जागें और इंडिया नरेंद्र मोदी इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव डालें और यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें मंजूर हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती का ये तरीका यकीनन काबिल तहसीन और सताइश है। नॉटिंघम में मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए ईद उल अज़हा इंतहाई सादगी से मनाई गई। इस मौके पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत करते हुए भारतीय हाई कमिश्नर लंदन के सामने एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान किया गया। देखिए शहजाद अरमान की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से कर्फ्यू और ईद कुर्बान पर पाबंदियों पर बरतानिया में मुकीम मुसलमानों में गमो गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार नमाज ईद के इज्तमात में महसूस किया गया। नॉटिंघम इस्लामिक सेंटर में ईद के 2 इज्तमात हुए। पहली नमाज ईद हाफिज अब्दुर्रहमान जबकि दूसरी नमाज ईद मौलाना अबू हुज़ैमा ने पढ़ाई। इस मौके पर मुस्लिम हैंड के चेयरमैन सैयद लखत हुसनैन शाह, डॉक्टर मुशर्रफ, डॉक्टर अल्लामा अमजद अलजहरी और दीगर ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर कश्मीर के मुसलमानों पर भारतीय हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियों का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं। उम्मत मुस्लिमा से मुतालबा है कि वो कश्मीरियों को इस दुख दर्द से निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अजीम दिन, मुबारक दिन हमें अपने कश्मीर के जो मजलूम भाई बहनें हैं जो अपने घरों के अंदर महसूर है एक लिहाज से, उनके लिए भी आज हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे और जुल्म और सितम से उन्हें बचाए जाए। आज का दिन ईद उल अज़हा का दिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी जो सैयदना इस्माइल की शक्ल में रब ने कबूल फरमाई, उसकी याद ताज़ा करवाती है। और आज कश्मीर के जो मुसलमान पिछले एक वीक से जो कर्फ्यू के आलम में अपने घरों के अंदर मुक़य्यद हैं, उनकी खातिर भी और उनके साथ भी हमारा यकजहती बनता है, ताकि उनके ऊपर जो उनके हकूक़ छीने गए हैं और उनके हकूक़ को छीना जा रहा है, उनके साथ सॉलिडरिटी के तौर पर उनके साथ हम खड़े हों। सच्ची बात है शाह जी, आज सारा दिल बहुत परेशान था, बहुत गमगीन था कि साढ़े कश्मीर में जोड़े भाई सिस्टर उन्होंने वास्ते जो गुजर रही है तो पढ़ना इस मुश्किल घड़ी में भी मदद फरमाया। आप सबको ईद मुबारक। इस ईद पर खुशी उस तरह नहीं हो रही जो एक रवायती तौर पर होती है। उसकी वजह यह है कि हमारा आप सब का प्यारा कश्मीर जल रहा है, कश्मीर दुख में है, अहले कश्मीर हिसार में है। अल्लाह तबारक व तआला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। उनकी आज़ादी के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? यूके में, लंदन में 15 अगस्त को इंडियन एम्बेसी के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसमें शरीक होइए। इमाम साहिबान की जानिब से ऐलान किया गया कि 15 अगस्त को भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत और मोदी हुकूमत के जाबराना इक़दामात के खिलाफ मुजाहिरा किया जाएगा। नॉटिंघम से राजा मोहम्मद अयूब, अब्दुल गफ्फार इनकलाबी, राजा परवेज आजम, राजा जावेद इकबाल, अली असगर और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में काफिला 15 अगस्त को सुबह 8 बजे फॉरेस्ट ग्राउंड और इस्लामिक सेंटर से लंदन के लिए रवाना होगा। स्कॉटलैंड में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी ईद कश्मीरी बहन भाइयों के नाम की। नमाज ईद के इज्तिमात में कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ग्लासगो से देखिए शाहिद मीर की रिपोर्ट।
स्कॉटलैंड में ईद उल अजहा नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ग्लासगो के इलाके एयरशायर की मरकजी मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। इस मौका पर कश्मीरियों की आजादी और हक के खुद इरादियत के लिए भी खसूसी दुआएं मांगी गयीं। खुतबे के बाद सब ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबादें पेश की। नमाजियों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में ये ईद मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम करने का ऐलान किया। एयरशायर एसोसिएशन की तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। ईद मुबारक टू एवरीवन। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ये कश्मीर का जुल्म नया नहीं है, शुरू कब से हो रहा है, हमारी पैदाइश से पहले का, ठीक है। इसके खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए, अमली इक़दाम करने चाहिए। सबको ईद मुबारक, यहाँ भी स्कॉटलैंड में भी और पाकिस्तानी बहन भाइयों को। इस ईद के मौके पर हमें कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो इंडिया में जुल्म कर रहा है, हमें उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बुरा हो रहा है, ये इस्लाम कम्युनिटी को सबको इकट्ठी होकर इसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस मौके पे हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भी हैं और उनके साथ ही यकजहती का इजहार करते हैं कि अल्लाह उनको भी आज़ादी की नेमत दे, वो भी अपने घरों में खुशी से ईद मनाएं और सब मिलजुल के रहें। We appeal to all the community to come and join with us for prayers, and inshallah we have all the facilities now. बहुत खुशी का दिन है आज, बड़ी ईद का दिन था, माशाल्लाह मस्जिद बड़ी थी। हम सबको ईद मुबारक कह रहे हैं, सब एयरशायर लोगों को ईद मुबारक। नमाज ईद के लिए एयरशायर मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से खसूसी इंतजामात किए गए थे। पार्किंग के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई थी। मस्जिद आने वालों के लिए मीठे का बंदोबस्त भी था, जबकि खवातीन के लिए भी अलग से इंतजामात किए गए थे ताकि उन्हें नमाज की अदायगी में किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। एयरशायर की सबसे बड़ी मस्जिद एयरशायर मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर तमाम आज यहाँ पे ईद अदा की गई, जिसमें ना सिर्फ अंदर मस्जिद के हाल बल्कि बाहर के हाल जो दीगर हाल थे वो भी मुसलमानों से भरे थे। ईद के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद मुबारक कहा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, किलमानक, स्कॉटलैंड। ब्रैडफोर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम हुआ। ईद मिलन पार्टी में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मजेदार पकवानों का खूब लुत्फ उठाया। MP इमरान हुसैन अपने वालिद साबिक काउंसलर अल्ताफ हुसैन के हमरा फरीज़ा हज अदा करने के लिए गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ईद मिलन पार्टी की मेजबानी के फराइज काउंसलर कामरान हुसैन ने अदा किए। कामरान हुसैन का कहना था कि वो ईद के पुरमसरत मौके पर हर साल दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए दस्तरखान सजाते हैं। It's been for my father has every year called a little get together on Eid Day for family and friends where everybody can get together, have a social time and obviously enjoy and at the same time enjoy Eid together. My father is currently away on Hajj and so is my brother Imran Hussain, but we have kept that tradition going of every year inviting people. स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा और गिरदोनवाह में मुकीम पाकिस्तानियों ने ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश से मनाई। शहरियों का कहना था कि ईद का असल मजा पाकिस्तान में है, ख्वाहिश है कि अगली ईद वहाँ ही गुजरे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद से गुफ्तगू में कश्मीरी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश किया। From the UK to all of Pakistan, Eid Mubarak. Miss it with all my heart. मैं तमाम मुसलमान को सबको ईद मुबारक कहता हूँ और मैं पाकिस्तान को मिस करता हूँ। हमारी तरफ से सब बहन और भाइयों को और माओं को सबको ईद मुबारक। सारे बहन भाइयों को Eid Mubarak. To all my Muslim brothers and sisters, have a happy Eid. We are missing Pakistan and wish we were there celebrating with you, but we hope you have a blessed day. मेरी तरफ से तमाम यूके में रहने वाले मुसलमानों को और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक। ईद मुबारक के मौके पर स्कॉटलैंड के शहर फाल्कर के लोगों का कहना था कि ईद के मौके पर उन्हें पाकिस्तान की बहुत ही याद आती है। ईद का मज़ा जो पाकिस्तान में है वो बाहर के मुल्कों में नहीं है। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़,
स्कॉटलैंड। ल्यूटन में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी 15 अगस्त को लंदन मुजाहरे में शरीक होकर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करें। शहरियों का नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, देखिए। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया की तरफ से जुल्म ढाए जाते हैं उस पर हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इंडिया को बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। और मैं अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों को दावत देता हूँ जो 15 तारीख़ को कश्मीर के हवाले से लंदन में एक मुजाहरा है, उसमें सब शरीक हों और हमारे कश्मीर भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हों। मेरी तमाम कश्मीरी बहन भाइयों से पुरज़ोर अपील है कि वो 15 का जो प्रोटेस्ट है उसमें भरपूर शिरकत करें और उसको कामयाब करें और उसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए कि मोदी ने जो आर्टिकल 370 और 35A के साथ जो ज़्यादती की है और जो नाहक उन्होंने इस आर्टिकल को अपने पैरों के तले रौंदा है, उसको हमें नामंजूर है। और उस वक्त तक कोई भी जो कश्मीर पे है वो सौदाबाजी नहीं हो सकती जब तक उसमें कश्मीरियों की राय को शामिल ना किया जाए। और कश्मीरी की राय ही से ही इसको हल होना चाहिए और हम लोगों को पीसफुल मीन्स ढूंढने चाहिए और इसको यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि आप उससे अपनी फैमिलीज़ को प्लीज़ इन्वॉल्व करें, बहुत ज़रूरी है। और इसको सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है शेयर करें, जितना इसको कंडेम कर सकते हैं इसको करें। और मैं चाहूँगी कि जब तक ये इसको रीइंस्टेट नहीं किया जाता है उस वक्त तक सरापा एहतजाज रहें। हिंदुस्तान ने जो आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया और कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म किया और कश्मीर पे जबरन कब्ज़ा किया, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो उसकी इंटेंशन उसकी एक बैड इंटेंशन है। वो कश्मीर के अंदर जेनोसाइड करना चाहता है, वो कश्मीरियों की एथनिक क्लेंजिंग करना चाहता है, वो कश्मीर के डेमोग्राफिक को चेंज करना चाहता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी कश्मीरी कौम एक स्लोगन के नीचे, आज़ादी और एक झंडे के नीचे इकट्ठे होकर इसकी भरपूर मज़म्मत करें। मैं ये जो मैसेज दे रहा हूँ ये 15 अगस्त की जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट अरेंज की है इस हवाले से दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं यहाँ पे यूके में 1.4 मिलियन कश्मीरी हैं, तो हमें इतनी बड़ी प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हिल जाए, उनको पता चले कि कश्मीरी जो है वो ज़िंदा है, कि ज़िंदा होने के लिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए, वो खड़े अपने पाँव पे होना चाहिए। तो ये जो इंडिया ने कदम उठाया है, जो 370 आर्टिकल 370 को रिपील किया और 35A को, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है। बरतानिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने के लिए लंदन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अरकान शरीक हुए। सलीम साबरी की यह रिपोर्ट देखिए। लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने और उन्हें मुनासिब सहूलियात देने के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ ताजर बरादरी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी साहबजादा जहांगीर और आतिफ चौधरी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त मुल्क सही सिमत में जा रहा है और पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल होगा। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान आएं, उनको ऐसे मौके दिए जाएं जहां उनकी सरमायाकारी महफूज हो। शुरका ने मजीद कहा कि वजीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्जों से आजाद एक खुद मुख्तार रियासत बने। मौजूदा हुकूमत सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात देने के लिए तैयार है।
برطانیہ کی مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کانفرنس آن میٹیریل سائنسز اینڈ نینو ٹیکنالوجی میں شرکت کے لیے پاکستان سے آئی بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تیمور کے اعزاز میں پاکستانی نیاد برطانوی کمیونٹی کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اسی تقریب کا احوال دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ میں. برطانیہ میں پاکستانی نژاد برطانوی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان سے آئے بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تیمور اور ان کی ٹیم کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شائستہ تیمور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں منعقد ہونے والی ICMSN کانفرنس میں پیش کیے گئے اپنے ریسرچ ورک کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا. ڈاکٹر شائستہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے کاپر کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا فارمولا بنایا ہے جو پانی کی آلودگی دور کرنے میں نہایت مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی دسترس میں بھی ہے. یہاں UK میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے مٹیریل سائنس اور نینو ٹیکنالوجی پہ. یہاں پہ ہم نے اپنے یونیورسٹی کے 2 ریسرچ پروجیکٹس پریزنٹ کیے ہیں. ایک ریسرچ پروجیکٹ کا تعلق واٹر پیوریفیکیشن ٹیکنالوجی سے ہے. ہم نے ایکچولی ایک بہت کاسٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ ایڈزاربنٹ تیار کیا ہے جو کہ پانی میں سے ٹاکسک میٹلز کو ریموو کرتا ہے. اس موقع پر طلحہ بیگ کا کہنا تھا کہ اس فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے آلودگی کو ایسے زندگی بخش اجزاء میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جن کا استعمال پیراسیٹامول میں بھی کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ایک ریسرچ پیپر پریزنٹ کیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جو نینو مٹیریلز پہ بیس تھی. نینو مٹیریلز کی فیلڈ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے جس نے ہر طرح کے میٹر کو ایک نئے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے لیے ہمیں ایک کردار ادا کیا ہے. اور اسی فیلڈ کے اندر ہم لوگوں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا تھا جس میں گولڈ نینو پارٹیکلز کو ایک انوائرمنٹل فرینڈلی امبیڈنگ سپورٹ پر ہم لوگوں نے امبیڈ کیا. اور یہ جو ہم لوگوں نے مٹیریل بنایا یہ اس کے بہت سارے فائدہ مند یوزز ہیں، جس میں ایک یوز اس کا یہ ہے کہ جو آج کل پاکستان اور ڈفرینٹ اور ممالک بھی یہ ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں انوائرمنٹل پولوشن کا، تو یہ ایک پولوٹنٹ کو ایک لائف سیور میں کنورٹ کرتا ہے. یہاں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہم نے اپنا ریسرچ پروجیکٹ پریزنٹ کیا. اس میں ہم نے گولڈ نینو پارٹیکلز کو تیار کیا تھا جو کہ ایک ایز اے کیٹلسٹ یوز کیا تھا فور نائٹروفینول ریڈکشن میں 4 امائنو فینول میں جو کہ ایک ٹاکسن ہے. ٹاکسن کو نان ٹاکسک یوزفل سبسٹانس میں اس کو کنورٹ کرتا ہے، اور وہ نان ٹاکسک یوزفل سبسٹانس جو ہوتا ہے وہ پیراسیٹامول کی پروڈکشن میں بھی یوز ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایز اے ینگ ریسرچر ہم لوگوں کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا اور پاکستان کا بھی نام روشن کیا گیا تھا یہاں پہ. ڈاکٹر شائستہ کا مزید کہنا تھا کہ کانفرنس کے شرکاء نے ان کا کام کو بہت سراہا، جس پر وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں اپنے ملک کا مثبت تاثر قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.